अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बिन नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहते हैं कि दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाने चाहिए और अच्छी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया उकाड़ा के इलाका थाना गुगेरा में, जहां पर एक दोस्त ने अपने दोस्त के सर पर कुल्हाड़ियों के वार करके उसकी जान ले ली। आज के प्रोग्राम जुर्म बिन नकाब में हम इसी दोस्त का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है उकाड़ा में हमारे नुमाइंदा शहजाद खान, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी शहजाद, बताइएगा। जी कैसर भाई, ये हमारे थाना गुगेरा का ये हुआ कि जहाँ पे एक कुल्हाड़ियों के वार करके एक सर पे वार किए हुए थे, वो लाश पुलिस को मिलती है और वहाँ पे डीपीओ साहब ने कहा कि इसको ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया जाए। तो फिर एसएचओ जो थाना गुगेरा, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को मुतहर्रिक किया। उन्होंने जब इसको ट्रेस किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो जो मुबैना तौर पर जो दोस्त था उसने ही कुल्हाड़ियों के वार करके सर पे वार करके उस लाश को वीराने में फेंक दिया। और इसके बाद उसको मुबैना तौर पे ये शक था कि इसके हमारे दोस्त के जो तल्लुकात है वो हमारी औरत के साथ है, और इस ब्लाइंड मर्डर को बेहतरीन तरीके से हल किया और तारिक अजीज़ सिंध की हिदायत पर इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया गया। एक जैसा कि हमारे जो नुमाइंदा हैं शहजाद खान, उन्होंने बता दिया जी कि ब्लाइंड मर्डर था, सर पे कुल्हाड़ियों के वार किए गए थे एक शख्स पर और उसको फेंक दिया गया था। लेकिन जब डीपीओ उकाड़ा तारिक अजीज संधू के अहकामात पर गुगेरा थाना की पुलिस ने तफ्तीश की तो असल हक़ाइक़ सामने है। उसमें पता चला कि दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले सानू बड़ा अफसोस है तुहाडे भाई नाल लड़ा जुल्म होया, दोस्त ने दोस्त को मारता है। किन्ने अरसे तो दोस्ती सी दोवां दी आपस विच? ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਦਿਨ ਭਾਈ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਖਤਮ ਆ, 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਗੇ ਫਿਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਦੀ। ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ? ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਸ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ ਰਿਆਜ਼ਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ? 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। 2 ਬੀਵੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ 4 ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ। 2 ਬੱਚੀਆਂ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਆਸ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ, ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, 28 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਗਾਹ ਵੱਢਣ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬਈ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ? ਉਹਦੀ ਜੀ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੇ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਵੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਟਾਂਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 4 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। दोस्त ने अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से सर पर कुल्हाड़ी मारकर कत्ल कर दिया। ज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था। कोई नहीं जानता था कि इस शख्स को किसने कत्ल किया है और कौन एक वीराने में लाश उस शख्स की फेंक गया। लेकिन डीपीओ उकाड़ा के अहकामात पर उकाड़ा पुलिस स्पेशली थाना गुगेरा की जो पुलिस है, यहाँ के जो एसएचओ है नासिर जावेद, उन्होंने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया। बात करते हैं उनसे इस केस के हवाले से।
जी नासिर साहब बताइएगा, ये था मामला था क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमें 29/4/24 को एक 15 की कॉल मसूल होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक मक्की की फसल के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके सर से ब्लीडिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा। जैसे ही हमें कॉल मसूल होती है, हम फौरी मौका पे जाए वकुआ पे जहाँ पे इंसिडेंट अक्रंस हुई है पहुँचा जाता है। वहाँ पे उस एरिए को हम कार्डन कर लिया जाता है। जैसे ही एरिया को कार्डन कर लिया जाता है, उस मकतूल के वारसान तक भी ख़बर फैलती है और वहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है। कार्डन करके ताकि हमारे शवाहिद वगैरह ज़ाया ना हो, उसको हमारी सारी नफरी साइडों से कार्डन करती है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। उसी दौरान में क्राइम सीन यूनिट वालों को और फ्रांसिक की टीमें फ़ौरी इनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो मौका पर पहुंचती है, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम सारी इकट्ठी हो जाती है ताकि असल हक़ाइक़ को कि इसके मर्डर की या कत्ल की वजह क्या है उसको जांचा जा सके और इसके असल हक़ाइक़ तक पहुंचा जा सके। वक्त गुज़रता है, अभी ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर होता है, किसी को पता नहीं होता ये किसने कत्ल किया है, ना ही उसके वारसान को इल्म होता है, ना ही उस जगह के जो रहने वाले हैं जहाँ पे ये अक्रंस होती है उनको मालूम होता है। इसी दौरानिए में हम अपनी जितनी भी टेक्निकल टूल्स हैं हमारे पास, इसकी जो फेंसिंग करवाई जाती है, डिफरेंट लोगों की CDRs वगैरह ली जाती है, जहाँ पे एक साइड पे हम टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, सेकंड साइड पे ह्यूमन रिसोर्स की तरह के ज़रिए भी हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने में लग जाते हैं। जो उसके वारसान होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो लाइलम होते हैं इस चीज़ से कि हमारे भाई को और उसकी जो बीवी है कि इसको कौन कत्ल कर जाता है। तो जैसे ही हम इसको टेक्निकली देखते हैं तो एक चीज़ सामने आती है ह्यूमन रिसोर्स के ज़रिए कि एक इसका बेस्ट फ्रेंड था जो कि 24 घंटे इसके साथ रहता था। उस बंदे का नाम गनजनफर था। गनजनफर की जब मज़ीद इन्फॉर्मेशन ली जाती है, होता यह है कि आज से कुछ अर्सा पहले इसकी वालदा की डेथ होती है, गनजनफर वहाँ भी जाता है और उसकी जब हम CDR लेते हैं उसकी लोकेशन आती है कि पिछले काफ़ी दिनों से ये इसके साथ ही होता है, दिन को भी इसके साथ होता है, शाम को भी इसके साथ होता है, सिर्फ सोने के लिए घर जाता है। इसमें मज़े की जो बात है, इसके जो जनाजे पे वो शामिल नहीं होते। वजह पता लगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਨਫਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ अब ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि एक दोस्त ने पहले तो उसने 2 महीने पहले दोस्ती की और फिर उसके बाद उसने बड़ी बेरहमी से सर पर कुल्हाड़ियों के वार करके मार दिया। 4 मासूम बच्चियाँ हैं उसकी, एक बीवी से, एक बेटी उसकी एक बीवी से है, 5 बच्चों को उसने यतीम कर दिया उस शख्स ने, दोस्त बनकर उसने उसकी जान ले ली है। अच्छा, कामकाज की करता सी ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ? ਕੰਮ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਫੇਰੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਆ ਕੋਈ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ ਰਾਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰਚਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ- ਵਾਲ ਵੂਲ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਉਹ ਵਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈ ਵਾਲ ਬਣੇ ਸੀ 2-3 ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ बीवी बच्चियां ना घर ठीक ਹਾਂਜੀ, सी? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ लड़ाई ਦਾ। झगड़ा तो नहीं ਕੋਈ सी? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ। अब ये नाज़रीन जो असल कातिल है वो तो गिरफ्तार है, पुलिस की हिरासत में है, लेकिन जो जुल्म उसने कर दिया है अब उसका अजाला डेफिनेटली, जैसा कि हमारी बात हुई है SHO साहब से भी, उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम उस कातिल को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। तो अजाला यही है कि उस शख्स को सज़ा भी मिले और इन लोगों की, इन गरीबों की जो मुखैर हजरात हैं, डेफिनेटली वो भी
उन बच्चों के हवाले से उनकी इमदाद जितनी भी हो सकती है वो होनी चाहिए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के दोस्त भी हैं और गांव के रहने वाले भी। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि क्या वजह बनी, क्यों एक दोस्त ने एक दोस्त को ही कत्ल कर दिया। अच्छा, ये जरा थोड़ा दोस्त भी सी, थोड़ा दूर दा रिश्तेदार भी है, एक कत्ल होया ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ कि किन्ने अरसे तो दोस्ती सी उस मुंडे नाल दी? उनके जी महीना डेढ़ तो दोस्ती बनी है, तकरीबन 2 महीने हो गए दोस्ती ਨੂੰ जी। पहला कोई दोस्ती नहीं सी है? पहले कोई दोस्ती नहीं सी। अच्छा। फिर इनकी अम्मी फौत हुई है कि शायद दी, हाँ। शायद दे फौत होने तो 8 दिन पहले ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਰਲਿਆ ਸਾਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਦਾ ਵਤਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਣੇ ਕਿਧਰੋਂ ਲਵਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾਗਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਨਫਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਜ਼ਨਫਰ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਕਤੂਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਨਫਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਮੱਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹ ਪੱਟਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਹ ਪੱਟਦੇ ਪਏ ਸਵੇਰ 7:00 ਵਜੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਨਫਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਮੁੜ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਗਲਤ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਬਰ ਗੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਮੁਰਦੇ ਛੁੜਦੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਨੇ 2 ਤੋਂ ਬੇਲੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और ऐसी कोई रिंजगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई रोसा नहीं। उसके साथ था जनाजे पे, उसकी मौत पे वो नहीं आया? उसकी मौत पे वो नहीं आया। उस दिन जिस दिन ये अक्रंस होती है 28 तारीख का ये वकूआ है, क्योंकि हमें 29 को कॉल पास होती है, 28 की रात ये इंसिडेंट 28-29 की रात ये हो जाता है। जब उसकी हम लोकेशन और CDR वगैरह चेक करते हैं 28 के सारा दिन और सारी शाम ये उसके मकतूल के साथ मौजूद पाया जाता है। जब उसको फिर हम ट्रेस करते हैं IT टूल से, हम उसकी लोकेशन लेते हैं, फिर हमें ये एक जगह पर ट्रेस होता है, फौरी उसको अरेस्ट करके हम थाने में ले जाते हैं। जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ऐसे ये मामला, उसके सामने हर चीज़ जब उस लोकेशन वगैरह रखी जाती है ताकि वो किसी चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता, कोई उसके पास रास्ता नहीं बचता, तो एक चीज़ सामने आती है कि इसने आज से तकरीबन अक्रंस से कुछ 4 महीने पहले अपनी वाइफ को इसने बताया था कि ये जो शाहिद नाम का दोस्त है मेरा या जो लड़का है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये हमारी जो फैमिलीज़ के साथ अच्छा नहीं है, फीमेल्स वगैरह के साथ मुझे बिल्कुल इस चीज़ ये बहुत बुरी लगती है, मैंने इसको नहीं छोड़ना। मौका भी मौका मिला, उसी दौरान ये मैं इसके साथ ये फ्रेंडशिप ज़्यादा कर लेता है, उठना बैठना शुरू कर देता है। और मज़े की बात, ये दोनों आइस के एडिक्टेड होते हैं, ये अक्यूज़्ड भी और जो मरने वाला मकतूल है वो भी। अच्छा, दोनों आइस थे? दोनों आइस उसमें वो हमें पता ऐसे चलता है कि जब हम वहाँ पे शवाहिद वगैरह इकट्ठे करते हैं, हमें एक आइस वो क्यूब वगैरह मिलते हैं और उसके जो बोतल जिसमें वो बनती है प्रॉपर, वो भी उसकी कुछ निशानी भी मिलती हैं प्रॉपर, कुछ मकदार में थोड़ी सी वो अमाउंट में हमें आइस भी बरामद होती है, जिससे ये पता लगता है कि ये उस दिन में वर्गला कर उसको ले जाता है फसलों में, क्या हम बैठ के यहाँ पे आइस पीते हैं और कुछ गपशप करते हैं। जब रात काफ़ी हो जाती है, तकरीबन 10-11 बजे का ये टाइम होता है, जो उसको पता लगता है कि जो मकतूल है वो इस वक्त फुल एडिक्टेड हो चुका है, नशे में है, उस चीज़ का ये फ़ायदा उठाता है और कुल्हाड़ी उठाता है और उसके सर पे 3-4 वार करता है, जिससे वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए फौरी गिर जाता है और ये जो अक्यूज़्ड है मौके से फ़रार हो जाता है। अच्छा, ये इसने एडमिट कर ली। यहाँ पर जी नाज़रीन आप देख सकते हैं जी कि दोस्त ने दोस्त को ही मार दिया महज इस बिना पर कि उसको शक था कि शायद हो सकता है मुबैना तौर पर उस मकतूल के मामलात कुछ उसके जो घरेलू ख़वातीन उनके साथ ठीक नहीं थे। पर वजह कुछ भी हो, किसी की जान लेना जो है वो सरासर गलत है, कुछ शक की बुनियाद पर ख़ास तौर पर। और यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आइस और जो नशा है इसने हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर के रखा है। नौजवान क्या, जो भी इसकी लत में पड़ जाता है उसकी ज़िंदगी और भर के पूरा का पूरा ख़ानदान ही बर्बाद हो जाता है।
ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵਾਲ ਵੂਲ ਕੰਗੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਪਾਪੜ ਛਾਪੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਬੀਵੀ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ 'ਚ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਸੂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਸਤੀ ਰਿਆਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਸੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ 2 ਬੱਚੇ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਗ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਵਣ ਠੀਕ ਲਾਸ਼ ਠਾਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਵੈਸੇ ਲਾਸਟ ਜੀ ਤਾਂ 10-1 ਵਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 4 ਕੋੜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸਿਰ ਦੀ ਮਿਜਾਲੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ वो कह रहा है जी कि सर जो है वो इस हद तक ज़ख्मी था बल्कि पूरा सर ही खुला हुआ था और अंदर से हर चीज़ नज़र आ रही थी अल्लाह ताला रहम करे जी ऐसे जालिम लोगों से अल्लाह ताला सबको बचाए और ख़ुद भी वो बंदा जो है वो पता चला कि नशा तो करता था लेकिन मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था और उनका ख्याल रख रहा था। अब वो 2 बीवियाँ उसकी बेवा हो गई हैं 5 बच्चे यतीम हो गए हैं और महज एक दोस्त को शक था कि शायद उसकी जो घर वालों के साथ उसके जो फैमिली मेम्बर्स के साथ उसका कोई गलत मामला थे और शक की बुनियाद पर एक दोस्त ने अपने दोस्त को ही मार डाला। पर अल्लाह ताला ऐसे लोगों से ऐसे दोस्तों से ऐसे लोगों के शर से सबको बचाए। आइस ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से तो आई होगी। अब आपने अब उसके इस वाक़े के बाद इस इलाके में कोशिश की है इसको मसलन चेक करने की कौन सप्लायर है या इन मनशियात फरोशों के खिलाफ जो आइस बेचते हैं मुख्तलिफ इलाकों में उनके खिलाफ कार्रवाई का प्लान कुछ किया आप लोगों ने? एग्जैक्टली एक तो रूटीन में हम इसका क्रैकडाउन करते रहते हैं। आइस के हम बहुत से आइस के चर्च फ्यूम वगैरह के हम FIRs भी देते हैं। जितने मेन ड्रग पेडलर्स हैं बिल्कुल कत्तन भी उनको किसी किस्म की माफ़ी नहीं है। मगर ये जो जब हमने इंसिडेंट्स देखा है उस तो स्पेशली हम उस नज़र से हर बंदे को मज़ीद हमने क्रैकडाउन जारी कर दिया है। उसके बाद हमने बहुत से ऐसे ड्रग पेडलर्स भी पकड़े हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे और जो चीज़ के जिस चीज़ के जो सप्लायर थे उनको पकड़ के हमने कैफरे किरदार तक पहुँचाया है। अच्छी अमाउंट्स में हमने ये जितनी भी नारकोटिक्स है बरामद की उन पर FIR दे के हमने उनको जुडिशल किया। बिल्कुल सही है जी नाज़रीन, क्योंकि ये मनशियात के हवाले से भी डेफिनेटली इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी और शहर की बेस पर भी और कौमी सतह पर भी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और होनी भी चाहिए और मज़ीद सख्ती होनी चाहिए ताकि ये जो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाले लोग हैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो और उनको दोबारा ये काम जो है वो ना कर सकें। जैसे कि SHO साहब ने बता दिया कि ऑलरेडी इलाके की जो पुलिस है वो मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करती रहती है, लेकिन ख़ास तौर पर इस वाक़े के बाद जो है मज़ीद जो है वो सख्ती कर दी गई है और कोशिश यही की जा रही है कि ये जो मौत बांट रहे हैं लोग उनको जो है पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमारी गुजारिश है कि सज़ाएँ इतनी सख्त होनी चाहिए। पुलिस तो अपना काम करती है लेकिन ये लोग फिर कुछ चंद सज़ाएँ छोटी छोटी काट के फिर बाहर आ जाते हैं, फिर वही काम शुरू कर देते हैं। तो मनशियात फरोशों के खिलाफ भी ऐसी सज़ाएँ होनी चाहिए ताकि दोबारा वो आकर हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद ना कर सके। अच्छा ये आप बताइएगा कि स्पेशली अब ये जो बंदा है जो मकतूल है उसके जो मुदई घर कौन बना है, मसलन वालदैन में से कोई बना है या भाई में से कोई बना है? ये जो मुदई है इसकी एक्चुअली जो मकतूल है इसकी 2 शादियाँ थी। इसकी जो पहली वाइफ है वो इसकी मुदई बनी थी। इसमें मैं छोटी सी बात ऐड करता चलूँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की थी पहले मनशियात वाली। उसमें हम बताते चलें कि इस दफ़ा ये DPO साहब ने भी स्पेशल टीमें तश्कील दी हैं। हमने जितने भी मैक्सिमम FIRs दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मेरे जो पर्सनल केस थे व्हेन आई वाज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें हमने एक में 14 साल सज़ा करवाई है एक अक्यूज़्ड को और एक में 9 साल और जो कि वो फ़ीमेल है 9 साल और उसमें 2 लाख रुपए उसको जुर्म फ़ाइन भी हुआ है। ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत से केसेस अब आपको देखने में मिलेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा हमने सज़ाएँ करवाएँ, क्योंकि हम जब कोई FIR देते हैं हमारा मोटो टारगेट एक ही होता है कि ये दोबारा ये करने का सोच भी ना सके और पूरी जिसने जितना इसका कसूर है अल्हम्दुलिल्लाह उसको इतनी पनिशमेंट इसको इतनी मिलेगी। बिल्कुल सही है जी। और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है जैसे कि SHO साहब ने बता दिया कि इन्होंने इस इलाके में जो ड्रग डीलर्स थे या जब नशियात बेचने वालों को सज़ाएँ भी दिलवाई हैं और ऐसा ही मामला पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ में भी होनी चाहिए ताकि कोई भी हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद ना कर सके।
एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग है इस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? जी बिल्कुल, जो भी हमारा केस है उस तक हम फाइनल नहीं करते जब तक उसका प्रॉपर हमें क्लू ना मिल जाए, हमारी इन्वेस्टिगेशन फाइनल ना हो जाए। जिस इसने जो टूल यूज़ किया था, ज्वाला इस्तेमाल किया था, इसने कुल्हाड़ी जो इस्तेमाल की थी, ड्यूरिंग रिमांड इसने हमें वो बरामद कराई है बाकायदा, वो जो कि उसका भी हमने फोरेंसिक करवाया। और इसके अलावा इसकी जो जितना हमारे पास डाटा है, लोकेशन जिसकी, उसके अकॉर्डिंगली भी जो हमारी FIR है वो बिल्कुल उसको मैच कर रही है। और एट दी एंड इसने कन्फेशन भी किया है इस चीज़ का कि मैंने मर्डर किया है और ये सारा ये वजह थी, ये सिनेरियो था। लोकेशंस हमारी जिस आला से इसने कत्ल किया है वो ईच एंड एवरीथिंग वो हमारे अपने कब्ज़ा में लिया है, फ़र्द में लिया है और इसको इंशाल्लाह ये पूरे कैफरे किरदार तक पहुँचेगा। बिल्कुल सही है जी। जान का बदला जान डेफिनेटली, और कानून के मुताबिक जो भी सज़ा बनती है, क्योंकि इस शख्स ने एक शख्स को कत्ल किया है, शादीशुदा शख्स था, छोटे छोटे उसके बच्चे थे। बहरहाल जो भी हुआ, अब उसका अंजाम जो है बहुत गलत है। यानी कि वो मकतूल अगर वो नशा करता था तो भी गलत है, अगर मकतूल के मामलात कुछ गलत थे तो वो भी गलत है। लेकिन इसकी जान जिस तरह से जिस तरह से इसकी जान ली गई है, ये सोच करके एक दोस्त इस तरीके से किसी दोस्त को मार सकता है। तो बहरहाल इस तरह के मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए। बहरहाल जो पुलिस की कारकर्दगी है, ओकाड़ा पुलिस की, DPO ओकाड़ा के अहकामात पर गोगेरा थाना की पुलिस और SHO नासिर जावेद और उनकी टीम ने इस अंधे कत्ल का सुराग बर वक्त लगा लिया। और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे मामलात कभी भी ना हो और कोई इस तरह के गलत रास्ते पर ना चले और ना ही कोई किसी की जान ले। तुम ये दसो कि अपना कोई अपील करना चाहो, तुम कुछ कहना चाहो, जरूर अपना दस सकते हो। ਸਾਡੀ ਜੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਦਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਫਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, 4-5 ਤੇ 7 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, 4 ਬੇਟੇ ਨੇ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ये जी एक तो गुर्बत मार देती है जी ऐसे लोगों को, और ऊपर से ऐसी जो ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं। अब इस शख्स के अपने भी बच्चे हैं, वो कह रहा है 4-5 बच्चे और वो भी मेरी कफालत में आ चुके हैं, और ज़िंदगी अब भाई के लिए इंसाफ के लिए भाग दौड़ नहीं कर सकता। इसको इंसाफ दिलाया जाए। यहाँ पर डेफिनेटली DPO ओकाड़ा और ओकाड़ा पुलिस और थाना गोगेरा की पुलिस उनके लिए अप्रिसिएशन इस सेंस में है कि उन्होंने एक गरीब की बात सुनी और उसके असल कातिल तक पहुंची पुलिस और उसको गिरफ़्तार किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि उस कातिल को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।